Hello everyone, welcome back. Welcome to another video. And today we are going to discuss genetics and plant breeding questions which have been asked in the last year. So paper 2 of agriculture 2020. Now first let us see the distribution of marks. So as usual, genetics has been asked for 40 marks. Its weightage varies and it oscillates between 40 to 50. Okay. Then we have plant breeding. Now this is a subject now where it can be asked for more than 100 also, which has happened in the previous years, where plant breeding has been asked for more than 120 marks. Now in last year 75 marks were allotted to plant breeding. Seed science, as usual, it varies between 40 to 50. And plant physiology, the weightage has not been changed. It is almost within the range. Generally, plant physiology can vary from 60 to 70, or it can be even less than 60, sometimes if only for 50 marks. So it is within the range. Horticulture can change. Okay, horticulture, you cannot predict the weightage of horticulture. Sometimes it can be only 30 marks or 40 marks, or sometimes it can be 80 or 90 marks also. So entomology and pathology, they are within the range, because you can get at most 20 to 30 marks from entomology or plant pathology. Okay, so entomology is asked for 20 marks, pathology 15. Biotechnology is within the range, because maximum you can get two questions for 20 marks or one question for 10 to 15 marks. And last one is general awareness or miscellaneous part, which is the last paragraph of the syllabus, which is asked for 40 to 60 marks, and it is also within the range. So only weightage of plant breeding has reduced compared to previous years, because it is difficult to guess the weightage for how many marks it will come, but it can be within generally you can expect 60 to 100 marks. It can be between, it will be between 60 to 100 marks. Right, so first we'll start with genetics, then we'll see the questions of plant breeding. So genetics, now it is, in the last few years, before 2010 or 11, they used to ask these definitions or very short answers. In the last 6 to 7 years, I have not seen this type of question. Okay, they used to generally ask short answers for 10 marks. But this year, for 10 marks, they have asked definition or short explanation of these topics like chromosome number, chemical constituents of chromosome, chromomere, Y chromosome. You have to just define it or write a very short explanation of 2 lines. Okay, so each has a weightage of 2.5 marks. So short definition chalega ya fir 2 to 3 lines ka explanation, that will be enough. So chromosome number, here you have to write what is haploid chromosome number, what is diploid, and what is basic number. You have to explain what is haploid, diploid, and basic number of chromosome. Okay, what is basic number? Basic number is the gametic chromosome number of a true diploid. Okay, so chromosome number, haploid, diploid, and basic number of chromosome, you have to define them. Then chemical constituents of chromosome. So chromosome में क्या है? You have DNA, RNA, histone proteins and non-histone proteins. ये histone proteins में you have to write octamer का composition जो है ना, H1, H2B, H3 and H4. तो कौन से histone proteins बस बता देना कि कौन से हैं octamer में. And chromomere, these are bead-like structures which are linearly arranged on the chromosome. And recent evidences have suggested that it is unit of DNA replication or RNA synthesis or RNA processing. Then Y chromosome, it is one of the allosome. So you have human का example दे देना, 23 sets of 23 pairs of chromosomes. 23 pairs में से 22 are autosomes and 1 pair is allosome. उसमें भी XX हो सकता है या XY हो सकता है. And Y chromosome does not bear any functional genes. It is mainly for sex determination. ये सेक्स को डिटरमाइन करता है, अदरवाइज दे आर नो फंक्शनल जीन्स.
Then enumerate various types of structural chromosomal aberrations with their types. Now this is one of the favorite questions of the examiners. ये हमेशा आता है, हर दूसरे साल तुमको दिखेगा aberrations. Okay, so structural chromosomal aberrations. Sometimes they might ask you chromosomal aberrations बोलेगा, सीधा chromosomal aberrations. You have to mention both structural and numerical there. But here they have specifically asked for structural chromosomal aberrations, deletion, duplication, translocation and inversion. Now detailed explanation of inversion type of structural aberration. You have to enumerate all the types. तो उसमें भी deletion, duplication हो, थोड़ा थोड़ा सा explain, बहुत छोटा explanation. उनको बता देना कि कौन से डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन उसमें भी कितने टाइप्स के हैं. देन इन डिटेल यू हैव टू एक्सप्लेन इन्वर्जन, पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डिटेक्शन में, वो डाइसेंट्रिक ब्रिज एनाफेज में वो पक्का तुमको बताना है. ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई दैम एंड उसका इफेक्ट क्या होगा फिनोटाइप के ऊपर. नाउ दिस इज पेट क्वेश्चन, इसका तो तुम स्ट्रक्चरल एबरेशंस का तो तुम नोट्स बना के रख लो, राइट. Then again similar question as to the first one. Write short note on the following. Each carries 3 marks. 15 marks का है, 5 दिए हुए हैं. Okay, each carries 3 marks. So first one is sex linkage. So those traits which are those traits for which genes are present on sex chromosomes or allosomes, they are called sex linked traits. And linkage between these genes which are present on sex chromosomes, they are called that is called sex linkage. So traits which are traits for which genes are present on sex chromosomes, they are called sex linked genes, and linkage between these genes is called sex linkage. Now double crossover, so we know that in Pachytene stage there is crossing over between non-sister chromatids. Generally crossing over takes place at one place, but there are instances where double crossing over has been observed. Double crossing means तो Pachytene में तुम्हारे पास there are 4 sister chromatids. These two are 4 chromatids. These two are sister chromatids and these two are sister chromatids, right? Now these two, ये दोनों जो दूसरे क्रोमोसोम पे हैं, this one, ओके, ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों जो बगल बगल में है, दीज टू आर नॉन सिस्टर. नॉर्मली इट हैपेंस एट वन प्लेस, ओके, बट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सी, सो these two are non-sister chromatids. ये दोनों sister chromatids हैं और ये दोनों sister chromatids हैं, पर ये दोनों non-sister chromatids हैं, right? These two are non-sister chromatids. And when crossing over takes place, अरे यार, जनरली एक प्लेस पे, द पॉइंट इज कॉल्ड chiasma, एक जगह पर हो सकता है, बट देर आर एविडेंसेस दैट क्रॉसिंग ओवर कैन टेक्स प्लेस एट मोर देन वन पोजिशन. ऐसे हो गया, सपोज दो जगह पर हुआ है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, यहां पर एक बार हुआ है, यहां पर एक बार, इसको बोलते हैं डबल क्रॉस ओवर, व्हेन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट 2 डिफरेंट पोजिशंस. Then autosome means there are, human का फिर से example दे देना, explain with an example, that is always recommended. Now 23 pairs of chromosomes हैं, उसमें से 22 जो हैं these are autosomes and 1 pair is allosome, जो sex determination में जो जिसमें sex linked genes होते हैं. Rest of them are autosomes. Okay. Then we have cytoplasmic male sterility. First define male sterility, then male sterility can be of different types: cytoplasmic male sterility, genetic male sterility and cytoplasmic genetic male sterility. 3 types तुम्हारा जनरली है, और chemically induced male sterility भी हो सकता है. 4th type भी बता देना. वो देने के बाद then explain when the male sterility is
बिकॉज ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। आई मीन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स पे कभी म्यूटेशन होता है तो दैट में कॉज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एंड इट इज मैटरनल इनहेरिटेंस है इसमें। आई मीन द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी is because of the cytoplasm and because in the F1 the cytoplasm is contributed by mother। तो डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हो उसको। देन एनोप्लॉइड्स, सो व्हेन देयर इज चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, whenever there is an extra chromosome other than the normal number, डिप्लॉयड नंबर से जो नॉर्मल नंबर है उससे अगर एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है या दो क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा आते हैं या कम हो जाते हैं, that is because of those are called aneuploids। now aneuploidy में भी different types है, monosomic, trisomic, nullisomic, double trisomic, वो explain कर देना। okay, so reason भी अगर दे सकते हो तो बता देना, because of non disjunction। okay, non disjunction of chromosomes during the gamete formation। so explain them इन 2 to 3 लाइन्स, उससे ज्यादा मत देना क्योंकि 3 मार्क्स का ही है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो टाइम नहीं बचेगा। यू हैव टू एक्सप्लेन 5 एंड इफ पॉसिबल वेर एवर डायग्राम्स जहां पर बना सकते हो दिखा देना। सो दैट वाज जेनेटिक्स। इट वाज आस्क्ड फॉर 30-40 मार्क्स का जेनेटिक्स है, 2 15 मार्क्स के, एक 10 मार्क का क्वेश्चन। देन कमिंग टू प्लांट ब्रीडिंग, नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग फॉर 5 मार्क्स। सो ये पहली बार था, बहुत 6-7 ईयर्स में कभी भी मैंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं देखा था। In the last 10 years I haven't seen 5 marks question। so ये पहली बार बहुत सालों के बाद 5 marks का क्वेश्चन पूछा है। एंड डिफरेंशिएट बोला है। सो मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में वी सेलेक्ट द प्लांट्स डिपेंडिंग अपॉन द जीनोटाइप। हम लोग जीनोटाइप को देख के वी यूज जीन्स एज द मार्कर्स, whereas in conventional breeding the selection process takes place by identifying the plants through their characters, external characters और phenotype। phenotype को देख के हम लोग सिलेक्शन करते हैं, पर जबकि मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में वी यूज जेनेटिक मार्कर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स और फॉर सिलेक्शन ऑफ द प्लांट्स इन द ब्रीडिंग प्रोसीजर। वो मेन डिफरेंसेस है। एग्जांपल्स भी दे देना, फिनोटाइपिक मार्कर में क्या है, हाइट, कलर, वो ऐसे, और डीएनए मार्कर्स में RAPD, RFLP, AFLP एग्जांपल्स। सो 2 to 3 डिफरेंसेस विल बी मोर देन इनफ। इसमें फास्ट हम लोग कर सकते हैं। फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के लिए कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्स मोर टाइम, वेराज मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग फास्ट हो जाता है। I mean, जितना जल्दी तुम DNA को आइडेंटिफाई कर सकते हो जल रन करके, उतनी जल्दी प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो इट इज अ वेरी, आई मीन यू कैन आइडेंटिफाई और आइसोलेट द प्लांट्स इजीली विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देन व्हाट इज मास सिलेक्शन, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन वेराइटल इंप्रूवमेंट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सीधा सीधा बीडिंग सीख से दिया हुआ है। मास सिलेक्शन डिफाइन करो क्या होता है। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर हियर, यहां पर प्रोसीजर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मास सिलेक्शन क्या होता है एंड एप्लीकेशन क्या है फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ देसी वेराइटीज और लोकल वेराइटीज। ओके, सो देसी वेराइटीज आर मिक्सचर ऑफ सेवरल लाइन्स। ओके, बट व्हेन यू आइसोलेट द सुपीरियर प्लांट्स based on their phenotype from those, I mean from the mixture of several lines, variety is considerably improved without affecting the adaptability। okay, अभी भी genetic variation है but it has reduced। okay, the variety is more uniform now after the mass selection। so examples के साथ दे देना वहां पर, BD में सीधा वो दिया हुआ है। सेकेंड जो एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ प्योर लाइन्स। सो प्योर लाइन्स genetic variation occurs in pure lines after a period of time। तो it is because of several reasons। contamination हो गया, या फिर crossing between two, I mean some amount of cross pollination also takes place। so या फिर mutations की वजह से, okay, physical mechanical mixtures। so there are several reasons for origin of variation। For purification of pure lines, we go for mass selection method। Then define synthetic variety। synthetic variety क्या होता है and steps in the development of synthetic variety। तो synthetic variety is developed by crossing in all possible combinations। different inbred lines are crossed in all possible combinations and these inbred lines should have been tested for general combining ability। so those inbred lines
I mean अब डेफिनेशन में बता रहा हूँ, those inbred lines which have good general combining ability, those inbreds are crossed in all possible combinations and the seeds from all those combinations are mixed in equal proportion. That mixture is called synthetic variety. So inbred lines which are tested for which have good general combining ability, they are crossed in all possible combination and the seeds which result from those crosses are mixed in equal proportion. That is the synthetic variety. वो mixture जो है उसको हम लोग synthetic variety बोलते हैं. Now steps in the development of synthetic variety में first step जो है isolation of inbred lines. First you have to isolate the inbred lines. Second, test them for general combining ability. Okay, evaluate them for general combining ability, and those which have good general combining ability only they are used. Third one, intermating in all possible combinations, intermate karo. Fourth step, mix the seeds in equal proportion. These are the 4 steps in the production of synthetic variety. Now again this is the direct question. Explain self-incompatibility and its mechanism. Discuss relevance of self-incompatibility in plant breeding. Now self-incompatibility क्या है? So the plants which produce viable pollen grains but fail to set seeds on self pollination. जो viable pollen grain produce करते हैं but जब तुम self pollinate करोगे उनको they will not set seeds. Those are that process or phenomena is called self incompatibility. Now इसमें अब बोला है कि explain भी बोला है mechanism, बस एक general classification दे देना. हेट्रोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक. हेट्रोमॉर्फिक में डाइस्टाइली, ट्राइस्टाइली. होमोमॉर्फिक में गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक. देन मैकेनिज्म में तुम बता सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस, ऑपोजिशनल हाइपोथेसिस, दोनों एक्सप्लेन कर दो क्या होता है. कॉम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस एंड ऑपोजिशनल हाइपोथेसिस, एंड एट डिफरेंट स्टेजेस कब कब होता है. स्टाइलर इनहिबिशन हो सकता है, सिग्मेटिक इनहिबिशन या फिर ओवेरियन इनहिबिशन, 3 जगह पर. देन रिलेवेंस क्या है? मेनली इट इज यूज्ड. अब इसका एडवांटेज लेते हैं हम लोग, बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल. तुमको डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड्स या हाइब्रिड वेराइटी डेवलपमेंट में एक स्टेज आता है जहां पर बोलते हैं, एक स्टेप है जिसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन. यहां पर इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है. ओके, वी डोंट हैव टू इमैस्कुलेट हियर बिकॉज इवन दो सेल्फ पॉलिनेशन मे हैपन, इट विल नॉट सेट सीड्स. सो हाइब्रिड सीड डेवलपमेंट में, हाइब्रिड वेराइटी डेवलपमेंट में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होता नहीं है. आई मीन पॉलिनेशन हो भी गया तो सीड सेट नहीं होगा. दो दे प्रोड्यूस वायबल पोलन ग्रेन बट प्लांट्स फेल टू सेट सीड्स अपॉन सेल्फ पॉलिनेशन. सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुमको मिल जाएगा सीधा बीडीसी में, डायरेक्ट मिल जाएंगे इसके आंसर्स तुमको. सो प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस. अगर अभी भी प्रिपेयर नहीं किया है तो तुमने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी, इनका तुम्हारे पास ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर होकर रहना चाहिए. डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा है. प्लांट ब्रीडिंग में डिफिकल्ट कुछ भी नहीं पूछा है, ऑल द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट. प्लांट ब्रीडिंग वाज वेरी सिंपल दिस ईयर. जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा है. नाउ डिस्क्राइब एप्लीकेशंस ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग. अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन. बीडीसी में एप्लीकेशंस लिस्ट किया हुआ है, 7-8 पॉइंट्स सीधा दिए हुए हैं. ओके, एंड डिस्कस द लिमिटेशंस. एप्लीकेशंस के नीचे ही लिमिटेशंस दिए हुए, सीधा सीधा बुक से उठाया है क्वेश्चन. ओके, एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है? जनरली म्यूटेशन ब्रीडिंग अभी बहुत कम यूज होता है. इन 40s, 50s, 60s अप टू 70s बहुत ज्यादा म्यूटेशन ब्रीडिंग का एप्लीकेशन था. अब बहुत कम हो चुका है बिकॉज मॉलिक्यूलर हमारे पास. म्यूटेशन क्या है ना, तुक्का है, गैम्बलिंग कर रहे हो तुम. ओके, जनरली म्यूटेशन ब्रीडिंग इज यूज्ड टू रिमूव ए स्पेसिफिक डिफेक्ट, ओके, और impart a specific characteristic on a otherwise well adapted variety. एक वेराइटी है जो वेल अडेप्टेड है, सब कुछ अच्छा है, बस एक स्पेसिफिक डिफेक्ट है उसमें, या फिर डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है, पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, या फिर ड्रॉट कंडीशंस के अगेंस्ट उसके पास रेजिस्टेंस नहीं है. सो एक कोई डिफेक्ट को हटाने के लिए हम लोग, बिकॉज जब whenever you expose the plant to म्यूटाजेंस, फिजिकल म्यूटाजन हो, केमिकल म्यूटाजन हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, अब तुक्का है. जब तुम सीड्स को एक्सपोज कर रहे हो तो कोई भी जीन म्यूटेट हो सकता है, बट तुम्हारा डिजायरेबल जीन ही म्यूटेट हो उसका चांसेस बहुत कम है. बट स्टिल चांसेस है, लेकिन
इट इज वेरी रेयर. डिजायरेबल म्यूटेशंस बहुत कम होते हैं, अनडिजायरेबल म्यूटेशंस का परसेंटेज ज्यादा है. ओके, 0.01% ही डिजायरेबल म्यूटेशंस है आउट ऑफ ऑल द म्यूटेशंस. 99.9% जो है अनडिजायरेबल म्यूटेशंस होता है. सो टू रिमूव ए स्पेसिफिक डिफेक्ट और टू इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, सपोज इंटरवेराइटल क्रॉस है, दो वेराइटीज के बीच में क्रॉस किया, F1 आ गया, F1 को फिर हम लोग एक्सपोज करते हैं. दोनों वेराइटीज के बीच में जब तुम क्रॉस करोगे, अगेन जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो इंक्रीज होगा. F1 विल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. अगेन F1, इफ वी एक्सपोज द F1 टू फिजिकल और केमिकल म्यूटेशंस, मोर वेरिएबिलिटी विल अकर, और ज्यादा म्यूटेशंस हो गए उसके अंदर, और ज्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ सकता है. इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स में भी हेल्प करता है ये. बट अगेन अनडिजायरेबल म्यूटेशन ज्यादा होते हैं तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स इज वेरी लेस, राइट. एंड स्पेसिफिकली इफ द कैरेक्टर फॉर विच यू आर गोइंग फॉर म्यूटेशन, आई मीन जो कैरेक्टर तुम नॉर्मल दो वेराइटीज को क्रॉस करके तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो F1 में, सपोज इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस अ डिजीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर, वो कैरेक्टर पेरेंट्स में से दोनों में से किसी के पास होना चाहिए. सपोज यू वांट टू क्रॉस X एंड Y. ओके, X जो है प्लांट, ये वेल अडेप्टेड वेराइटी है. ओके, ये सब कुछ अच्छा है, यील्ड एवरीथिंग इज गुड, बट इसमें डिजीज रेजिस्टेंस जीन नहीं है. Y इट इज अ वाइल्ड वेराइटी, ये डोमेस्टिकेटेड वेराइटी नहीं है, वाइल्ड वेराइटी, यील्ड कुछ नहीं देता, बट इसमें डिजीज रेजिस्टेंस जीन है. हम दोनों को क्रॉस कर रहे हैं एंड वी आर होपिंग दैट ये वाला कैरेक्टर तुम्हारा F1 में आ जाए, F1 में इसके सारे कैरेक्टर्स आ जाएं और इसका ये डिजीज रेजिस्टेंस वाला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाए. एक साथ तो सारे होंगे नहीं कैरेक्टर्स, बैक क्रॉस करते रहोगे, बट अगेन दोनों में से किसी एक पेरेंट के पास वो कैरेक्टर होना चाहिए, वरना F1 में वो कैरेक्टर नहीं आएगा. ओके, नाउ म्यूटेशन इज डन इन केसेस वेयर you don't have disease resistance character in the entire germplasm. तुम्हारे देश में जितना भी germplasm है उस पर्टिकुलर क्रॉप का, उसमें वो कैरेक्टर है ही नहीं. अब क्या करोगे? अब सपोज पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास वही क्रॉप है जिसमें वो, उनके पास वो जीनोटाइप है जिसके पास वो डिजीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर, वो हमको तो देगा नहीं. ओके, सो इट इज डन इन द केसेस वेयर द कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन द germplasm इन ए पर्टिकुलर टेरिटरी. इंडिया में नहीं है, बट इट मे बी प्रेजेंट somewhere else, but because of political reasons or some other reasons वो वैरायटी तुमको नहीं मिल रहा है क्रॉस करने के लिए. वो लोग डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी तुमको थोड़ी ना देंगे क्रॉस करने के लिए, वो तो एनिमी स्टेट है. सो इन दैट केसेस क्या करेंगे हम लोग? वी आर होपिंग दैट somehow because of some mutation that character is introduced. ऐसे केसेस में भी हम लोग करते हैं. देन लिमिटेशंस में क्या है? बहुत सारा है. अनडिजायरेबल लिमिटेशंस ज्यादा, अनडिजायरेबल म्यूटेशंस ज्यादा होते हैं. सर्वाइवल ऑफ द प्लांट इज आई मीन वेरी डिफिकल्ट. एंड समटाइम्स डिजायरेबल म्यूटेशन अनडिजायरेबल जीन्स भी उसके साथ लिंक्ड होता है. ओके, सो वो भी एक चांस है. प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट हो सकता है वेयर वन जीन कंट्रोल्स मेनी कैरेक्टर्स. एंड मोस्ट म्यूटेशंस आर रेसेसिव, वो भी एक लिमिटेशन है. सो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक से उठा के दिया है, उसमें बुक में सारे पॉइंट्स हैं दिए हुए हैं. अब ये तो रेगुलर क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर मार्कर्स एंड इट्स एप्लीकेशन. इसका नोट्स तुमने नहीं बनाया तो तुम्हारा गलती है, अभी तक तो तुमको बना लेना चाहिए था. ओके, सो जीन मैपिंग, ओके, QTL मैपिंग के लिए करते हैं. एंड मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, देन पिरामिडिंग के लिए, जीन पिरामिडिंग के लिए मार्कर असिस्टेड जीन पिरामिडिंग, इवैल्यूएशन ऑफ हेटेरोसिस, सेवरल एप्लीकेशंस आर देयर. ओके, टैगिंग से हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीन्स को. सो देयर आर 7 to 8 मेजर एप्लीकेशंस, उसका नोट्स बना लेना. मॉलिक्यूलर मार्कर्स का ये तो पेट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है. सो प्रिपेयर ए नोट्स फॉर मॉलिक्यूलर markers and their application in agriculture. So that was genetics and plant breeding. In the next video we'll discuss seed science and horticulture. Okay, so that was all for this video. Thank you very much.